नेक्स्ट जो है विच प्लेस रजनी डज, अच्छा ये दो बार हो गया तो ये हो जाएगा आपका, इसको कैंसिल कर देंगे। विच प्लेस, अच्छा रजनी डज बिलोंग टू, नहीं ये आपका होगा विच प्लेस डज रजनी बिलोंग टू, ये आपका सही एकदम तरीके से हो जाएगा। रजनी यहाँ वाला रॉन्ग हो गया, ठीक है। बताइए इसका क्या होगा, कहाँ रजनी कहाँ से थी, कहाँ से बिलोंग करती थी, तो ये बुआना लाखू जो है वो इसका जो गांव है वहां से ये बिलोंग करती थी। डी वाला राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और ये वाला जो है आपका एक और नया पैसेज आ गया, ठीक है। इस पैसेज में भी उसी तरीके से हम लोग दो बार पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, उसके बाद फिर है इसके क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, स्लो पढ़ेंगे एक बार। राजेंद्रन belongs to the Irula tribe, one of the India's oldest indigenous communities who live along the northeastern coast of the state of Tamil Nadu. They are known for their ancient and intimate knowledge of snakes, and their skills form an important but nearly invisible part of the healthcare system in India. Many people are scared of snakes, Rajendran said, but we must remember that the snake is only interested in survival. If we move in agitation, the snake perceives a threat and can strike. If we stand still, however, it will often slither away. चलिए अब थोड़ा सा इसको फास्ट पढ़ते हैं। Rajendran belongs to the Irula tribe, one of the India's oldest indigenous communities who live along the northeastern coast of the state of Tamil Nadu. They are known for their ancient and intimate knowledge of snakes, and their skills form an important but nearly invisible part of the healthcare system in India. Many people are scared of snakes, Rajendran said, but we must remember that the snake is only interested in survival. If we move in agitation, the snake perceives a threat and can strike. If we stand still, however, it will often slither away. ठीक है, नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। We were at the offices of the Irula Snake Catchers Industrial Cooperative Society, which was formed in 1978 in Vandemali, है ना, Vandanmali, sorry, which was formed in Vandanmali, Vandanemali, ठीक है, इस तरीके से इसको पढ़ना है, Vandanmali to capture snakes to extract their venom. Nearly 50,000 people die of snake bites each year in the country, and only reliable treatment is the prompt administration of the anti-venom. 6 companies across India produce around 1.5 million vials of anti-venom annually, and most of it is derived from the vexnom. अच्छा ये आपका venom है, ठीक है, from the venom extracted by the Irulas. Rajendram showed us a sunken sandpit enclosed by a low brick wall. A high thatched roof protected the space from the sun, and a small raised platform in the center of the pit had a simple blackboard with details of the snakes being held in the facility. This was the venom extraction site. We aren't hold too many snakes right now, he said, pointing to the numerous rows of clay pots neatly arranged outside thatched structure. Each pot will be half filled with sand before housing 2 snakes each, and the mouth of the pot will be carefully sealed with porous cotton cloth so that the snake can't leave the pot, but there is still enough air. चलिए अब थोड़ा फास्ट इसको पढ़ते हैं।
We were at the offices of Irula Snake Catchers Industrial Cooperative Society, which was formed in 1978 in वंदनामली, ठीक है, वंदनामली, इसको ऐसे पढ़ते हैं, वंदनामली, to capture snakes and extract their venoms. Nearly 50,000 people die of snake bites each year in the country, and only reliable treatment is the prompt administration of anti-venom. 6 companies across India produces around 1.5 million vials of anti-venom annually, and most of it is derived from the venom extracted by the Irulas. Rajendran showed us a sunken sandpit enclosed by a low brick wall. A high thatched roof protected the space from the sun, and a small raised platform in the center of the pit had a simple blackboard with details of the snakes being held in the facility. This was the venom extraction site. We aren't holding too many snakes right now, he said, pointing to the numerous row of clay pots neatly arranged outside thatched structure. Each pot will be half filled with sand before housing 2 snakes each, and the mouth of the pot will be carefully sealed with porous cotton cloths so that the snakes can't leave the pot, but there is still enough air. चलिए नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं 2 बार. फर्स्ट बार थोड़ा सा स्लो पढ़ेंगे. The cooperative has official licenses to hold about 800 snakes at a time. We keep every snake for 21 days and extract venom 4 times during that period. Rajendran said the snakes are then released into the wild. A small mark on their belly scales prevent the same snake from being caught repeatedly. The mark goes away after a few months. Rajendran's confidence in handling snakes and his deep understanding of these creatures are derived from a childhood spent in the forest and scrublands of the region. Before he turned 10, he had seen hundreds of snakes being captured. The Irulas usually work in silence. Even when they go into the forest with others, they instinctively know the significance of faint signs on the ground to either follow clutches or dismiss them. However, they often find it hard to articulate the details of their understanding even to people who study reptiles. चलिए अब थोड़ा इसको फास्ट पढ़ते हैं. The cooperative has official licenses to hold about 800 snakes at a time. We keep every snake for 21 days and extract venom 4 times during that period. Rajendran said, the snakes are then released into the wild. A small mark on their belly scale prevents the same snake from being caught repeatedly. The mark goes away after a few months. Rajendran's confidence in handling snakes and his deep understanding of these creatures are derived from the childhood spent in the forest and scrublands of the region. Before he turned 10, he had seen hundreds of snakes being captured. The Irulas usually work in silence, even when they go into the forest with others. They instinctively know the significance of faint signs on the ground to either follow clutches or dismiss them. However, they often find it hard to articulate the details of their understanding even to people who study reptiles. चलिए नेक्स्ट तो हमारे क्वेश्चंस हैं. तो दोस्तों ये पैसेज हमने पढ़ा और इसमें हमको एक आइडिया लगा कि ये जो पर्टिकुलर पैसेज है ये एक ऐसी पुरानी हमारे भारत की एक जनजाति जो है इरूला, जिसको कहा गया है इरूला जो ट्राइब है,
ठीक है, इरुला जो जनजाति है उनके ऊपर है, और उसका एक मेंबर, उस प्रजाति, उस जनजाति का एक मेंबर जिसका नाम है राजेंद्रन, है ना, वो उसके बारे में ये स्टोरी है कि किस तरीके से राजेंद्रन का इसमें परिचय पूरा हुआ है। और ये इरुला जाति के जो लोग हैं, ये जो कम्युनिटी के लोग हैं, ये कहाँ पर रहते हैं, है ना, इनका जो लोकेशन है ये नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में है, जो कि तमिलनाडु के राज्य में है। और ये अपने स्नेक के नॉलेज के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, ये जो जाति के लोग हैं स्नेक के नॉलेज के लिए, कि इनको स्नेक के बारे में काफ़ी कुछ इनको पता है, और ये स्नेक पकड़ते हैं। इनकी प्रजाति, इनकी जो नस्ल जो है आप बोल सकते हो, या इनके जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो केवल इनका काम ही पुश्तैनी इनका ये वर्क होता है, स्नेक को पकड़ते हैं, उसका जहर निकालते हैं, और उस जहर को जो है दवाई बनाने के लिए, या जैसे एंटीडॉट या फिर एंटी वेनम जो दवाइयाँ वगैरह बनती हैं उसके लिए काम आता है, ठीक है, वो बनाने के लिए ये लोग काम करते हैं। तो इन्होंने एक कोऑपरेटिव भी खोला हुआ है, उसके बारे में भी अभी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो एक आइडिया हमको पता चल गया इसको 2 बार रीडिंग करने से कि ये एग्जैक्टली है किसके बारे में पैसेज, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं पूरा वर्ड टू वर्ड। इससे पहले जो है थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, है ना, थोड़ा स्पेस हमारा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये राजेंद्रन के बारे में इसमें बात हो रही है कि ही बिलोंग्स टू इरुला ट्राइब। इरुला जो जनजाति है वहाँ उसका एक मेंबर है राजेंद्रन। और ये जो ट्राइब के बारे में और देखो एक्स्ट्रा क्या बताया गया है कि ये जो ट्राइब है वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट इंडिजीनियस कम्युनिटी। ये भारत की जो सबसे पुरानी एक इंडिजीनियस मतलब यहीं पर पाई जाने वाली, यहीं की मूल निवास, यहीं पर पाई जाने वाली एक कम्युनिटी है हमारे भारत की। हु लिव अलॉन्ग द नॉर्थ, कहाँ रहते हैं ये, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में, है ना, ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु राज्य में के इस कोस्ट के आसपास ये जो है रहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में। और ये किस लिए जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं फॉर देयर एंशिएंट एंड इंटीमेट नॉलेज, बहुत ही डीप एकदम गहरा नॉलेज, किसके बारे में, सांपों के बारे में, इनको इनका ज्ञान बहुत अच्छा है। एंड देयर स्किल्स फॉर्म and their skill form an important but nearly invisible, इनकी जो स्किल है, ये जो इनका सांप पकड़ने का जो आर्ट है या जो स्किल है, और ये एक तरह से इनविजिबल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम है। मतलब हमको ये दिखाई नहीं देता है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमको वो पता नहीं चलता है, बट एक्चुअल में उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारे भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में, ठीक है, कि एक तरह से ये सांपों से जो होने वाली मौतें हैं उसको कम करते हैं, ठीक है, उसमें काम करते हैं, कम करने का ये काम करते हैं। तो ये हेल्थ केयर सिस्टम का एक तरह से इनविजिबल छुपा हुआ हिस्सा है, ठीक है। आगे देखते हैं। Many people are scared of snakes, की बहुत से लोग जो है वो सांपों से डरते हैं। ये किसने कहा, देखो ये इन्वर्टेड कॉमा में है, इसका मतलब ये राजेंद्रन के शब्द हैं, है ना। राजेंद्रन का मानना है कि बहुत सारे लोग जो है वो सांपों से डरते हैं, बट वी मस्ट रिमेंबर, हमें एक चीज याद रखना चाहिए, दैट द स्नेक इज ओनली इंटरेस्टेड इन सर्वाइवल। स्नेक जो है वो कभी भी हमको काटने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपना बचाव करने में ही इंटरेस्टेड है। मतलब स्नेक जो है उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी करके वो खुद का बचाव करे, दूसरों को हार्म करना उसका उद्देश्य नहीं होता है। देखो आगे, इफ़ वी मूव इन एजिटेशन, हड़बड़ाहट में, एकदम जल्दीबाजी में अगर हम सांप के सामने इधर उधर ही मिलेंगे, मूव करेंगे, तो क्या होगा कि स्नेक परसीव अ थ्रेट एंड कैन स्ट्राइक। स्नेक को क्या लगेगा, अगर सांप के सामने हम दौड़ेंगे, भागेंगे और इधर उधर हिलेंगे, ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, उसको लगेगा कि ये मेरे ऊपर अटैक करने वाले हैं, है ना, और फिर वो अपने बचाव में अटैक करता है। मतलब अगर आप स्नेक के सामने एकदम चुपचाप स्टिल खड़े हैं, है ना, बिना हिले, बिल्कुल बिना कोई मूवमेंट दिखाए, तो स्नेक आपको कुछ नहीं करने वाला है, क्यों, उसको खतरा नहीं लगेगा, है ना। बट आप अगर उसके सामने हिलोगे तो फिर आपको डंक मार सकता है, ठीक है। तो मतलब ये वो अब एक नॉलेज शेयर कर रहे हैं अपने साथ। देखो ये, इफ़ वी स्टैंड स्टिल, अगर हम स्टिल रहेंगे तो क्या होगा कि इट विल ऑफन स्लिदर अवे, मतलब वो चुपचाप जो है, कई बार मोस्टली क्या करेगा, वो चुपचाप अपनी जगह से निकल जाएगा और बिना किसी हार्म किए हुए, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आगे बात हो रही है, जो राइटर हैं जिसने पैसेज लिखा है वो बता रहा है कि हम लोग जो है वी वर
एट द ऑफिस, हम मतलब कौन कौन, एक तो जो नरेटर है वो, और दूसरा राजेंद्रन जो है, इनके साथ जो है राजेंद्रन, वो ये दोनों कहाँ पर है, वी वर एट द ऑफिसेज ऑफ, ये देखो, इरूला स्नेक कैचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली हुई है ना, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन की हुई है, जो कि कब से ओपन की है, 1978 से, और कहाँ पर है ये है वंदनमली में, वंदनमलई या वंदनमलई उसको बोल सकते हो, है ना, वंदनमली, वंदनमली, ठीक है, वंदनमली ऐसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वंदनमली, वंदनमली में है ये, और इस सोसाइटी का नाम क्या है, इरूला स्नेक कैचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी, वंदनमली में है, 1978 में इन्होंने फॉर्म की, और इसका जो मकसद है वो क्या था कि टू कैप्चर, सबसे पहले तो इनको पकड़ें, सांपों को पकड़ें, और इसका जो जहर है, सांपों का जो जहर है उसको निकालें, ठीक है, उसके जहर को जो है वो निकालें, वो इसका उद्देश्य है। अब इसमें देखो नियरली और क्या डेटा बता रहे हैं कि 50,000 जो लोग हैं हर साल सांप स्नेक बाइट से मरते हैं, ईच ईयर इन द कंट्री, देश में जो है हर साल 50,000 जो लोग हैं वो सांप के काटने से मारे जाते हैं, एंड ओनली रिलायबल ट्रीटमेंट, और केवल एक ही उसका ट्रीटमेंट है, पता है आपको, एक ही ट्रीटमेंट, ओनली रिलायबल ट्रीटमेंट इज अ प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी वेनम, कि इसका जो है एंटी वेनम जो है उसको प्रोड्यूस करना, और उन लोगों को उस एंटी वेनम का समय पर डोज देना, उसका वही एक उसका सल्यूशन है, और कोई सल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है 6 कंपनीज जो है अक्रॉस इंडिया, पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में जो है 6 कंपनियां जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, कितना, अराउंड 1.5 मिलियन वायल, वायल का मतलब होता है दोस्तों छोटी छोटी शीशियाँ होती है ना, ग्लास की ऐसी शीशी होती है इतनी इतनी बड़ी, उसको वायल बोलते हैं, तो इतनी, जिसमें जो वेनम जो है एंटी वेनम वो स्टोर करके रखा जाता है। तो 6 कंपनियां जो है इतना 1.5 मिलियन जो वायल्स हैं वो एंटी वेनम के हर साल प्रति वर्ष जो है वो बनाती हैं, एंड मोस्ट ऑफ इट, ज़्यादातर जो है इज डेराइव फ्रॉम, और ज़्यादातर ये जो एंटी वेनम बनता है ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से हुआ है, ये इसका जो मसाला, इसका जो रिसोर्स है, मटेरियल, जो वेनम जो लगता है इसके अंदर, वो कहाँ से लाया गया है, फ्रॉम दी वेनम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी इरूलास, की इरूलास जो वेनम इकट्ठा करते हैं ना, उसी वेनम से जो है ये कंपनियों के पास जाता है वो वेनम, और फिर उससे जो है एंटी वेनम बनता है, ठीक है, दवाई बनती है एक तरह से। चलिए आगे देखते हैं, राजेंद्रन शोड अस द संकन सैंडविच, फिर राजेंद्रन जो है उनको लेके गया, ठीक है, नरेटर को लेकर गया उस जगह पे कि जहाँ पे वो ये लोग किस तरीके से वेनम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो पूरे स्पॉट पर लेके गया। तो देखो उसने क्या बताया, राजेंद्रन ने उनको दिखाया एक संकन मतलब एक ऐसा थोड़ा निचला हिस्सा, ठीक है, एकदम खुदा हुआ हिस्सा, जमीन से थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा जो है, सैंड पिट मतलब एक गड्ढा, मतलब एक गोल सा गड्ढा सा, थोड़ा सा जमीन से निचला हिस्सा, और जो कि इनक्लोज्ड बाय अ लो ब्रिक वॉल, दीवार उसके आसपास जो है वॉल से पूरा वो चारों तरफ से कवर्ड है, ठीक है, उसमें हाई थैच रूफ, एक हाई थोड़ा ऊंची सी एक छत भी है वहाँ पर, ठीक है, उसके ऊपर छत भी लगी हुई है, ठीक है, तो प्रोटेक्टेड, उससे क्या होता है कि पूरी जो जगह है वो सन से बची हुई है, मतलब पूरा एक बड़ा सा हॉल, ज़मीन के थोड़ा नीचे एक हॉल बना हुआ है, और वहाँ पे जो है बीच में एक छोटा सा थोड़ा सा रेज्ड टाइप का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, कहाँ पर, उस गड्ढे के सेंटर में बीचों बीच जो है एक प्लेटफॉर्म जैसा बना हुआ है, और उस प्लेटफॉर्म में एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है ना, एक सिंपल सा बोर्ड उसमें लगा हुआ है, और उस बोर्ड के ऊपर जितने भी सांप जो ये पकड़ के लेकर आए, है ना, जो भी सांप जो है बीइंग हेल्ड इन द फैसिलिटी, जितने भी सांप रखे हुए हैं उनके बारे में पूरा एक डिटेल दिया हुआ है, उनकी पूरी एक लिस्टिंग दी हुई है कि कौन सा सांप कहाँ से कौन सी वैरायटी का है, वो सारा डिटेल उस पर लिखा हुआ है ना। दिस वाज अ वेनम एक्सट्रैक्शन साइट, एक्चुअली ये जो जगह है, ये जो सैंड पिट है, ये वेनम जहर निकालने का जो साइट है, जगह है, जहाँ पर ये लोग जहर को सांप में से निकालते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, वी आरंट होल्डिंग टू मेनी स्नेक्स राइट नाउ, कि अभी जो है हम लोग, हमारे पास जो है बहुत सारे सांप नहीं है, हमारे पास कम सांप है, ही सेड, उसने कहा, पॉइंटिंग टू
द न्यूमरस रो ऑफ क्ले पॉट्स, उसने फिर देखा है ऐसे आसपास, है ना, ऐसे लाइन से मिट्टी के जो है ना कुछ छोटे छोटे मटके हैं, मिट्टी के मटके हैं, घड़े हैं, क्ले पॉट हैं, और पूरे नीटली अच्छे से उनको अरेंज किया गया है उन मिट्टी के घड़ों को आउटसाइड द थैच स्ट्रक्चर, वो जो स्ट्रक्चर है उसके बाहर उसको रखा गया है वो सब अलग अलग पॉट्स को। और हर एक पॉट, हर एक जो मिट्टी का जो घड़ा या बर्तन है विल बी, उसके अंदर क्या है, हाफ फिल्ड विद सैंड, आधा मटका तो वो किससे भरा है, रेती से, है ना, आधा तो उसमें रेती है। बिफोर हाउसिंग, मतलब पहले 2 स्नेक्स ईच, मतलब हर एक जो घड़ा है मिट्टी का उसमें 2 सांपों को रखा जाता है, ठीक है, एक घड़े में 2 सांप को रखा जाता है। और आधा जो है उससे पहले जो है क्या करते हैं, उस घड़े को आधा जो है पूरा रेती से भर देते हैं, आधा फिल कर देते हैं रेती से, और उसके ऊपर फिर सांप होते हैं, ठीक है। और उसका जो मुंह होता है एक्सक्यूज मी, उसका जो मुंह होता है घड़े का, है ना, विल बी केयरफुली सील्ड, उसको पूरा सील करते हैं, ऊपर से बंद करते हैं पूरा ध्यान से, विद अ पोरस कॉटन क्लोथ, एक पूरा कॉटन का जो कपड़ा है, ठीक है, रुई का जो कपड़ा है उससे पूरा अच्छे से उसको बांधते हैं, ताकि उसमें क्या हो कि हवा भी आए, है ना, वो बाहर भी ना निकल सके सांप, और उनको जो है सफिशिएंट हवा भी उसको मिलती रहे। तो ये पूरा उसका अरेंजमेंट होता है, जिस तरीके से वो कॉटन उस पॉट के अंदर, एक पॉट में 2 सांपों को रखते हैं, और ऐसे बहुत सारे पॉट्स लगे हुए लाइन से, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो ये द कोऑपरेटिव हैज ऑफिशियल लाइसेंसेस टू होल्ड अबाउट 800 स्नेक्स एट अ टाइम, इनके पास एक लाइसेंस है ऑफिशियली ये, जिसमें उस लाइसेंस के अंतर्गत 800 जो सांप हैं वो उस ऑफिशियली एक समय पर अपने पास रख सकते हैं, उसके ऊपर जो भी वेनम वगैरह निकाल सकते हैं, है ना। वी कीप एवरी स्नेक फॉर 21 डेज, है ना, एक सांप जो है उसको वो 21 दिन तक कम से कम अपने पास रख के जो उसका सांप, उसका जो जहर निकालने का काम है वो करते हैं, एंड एक्सट्रैक्ट वेनम। और देखो इस दौरान 21 दिन के दौरान जो है एक ही सांप से जो है 4 बार जो है वो क्या करते हैं, जहर निकाल सकते हैं, है ना, मतलब 21 दिन के अंदर 4 बार जो है वो उसका एक सांप का जहर निकाल सकते हैं। फिर राजेंद्रन ने कहा, ये राजेंद्रन के वर्ड थे सारे, आगे द स्नेक्स आर देन रिलीज इनटू द वाइल्ड, बाद में स्नेक्स को क्या करते हैं, वाइल्ड में छोड़ देते हैं, मतलब दूर जंगल में, वाइल्ड मतलब जंगल में जाके इनको सांपों को रिलीज कर देते हैं। फिर ये स्मॉल मार्क, एक छोटा सा मार्क जो है कहाँ पर, ऑन देयर बेली स्केल, उनके जो पेट, सांपों के जो पेट के वहाँ जो स्केल है, छोटी छोटी जो स्केल्स होती है, उनके पाँव तो होते नहीं, तो उस स्केल्स पे एक मार्क बना देते हैं, है ना, ताकि क्या होगा उससे कि प्रिवेंट द सेम स्नेक फ्रॉम बीइंग कॉट रिपीटेडली, बार बार एक ही सांप को वो नहीं पकड़े, ठीक है, तो इसलिए उसको वो मार्क लगा के छोड़ देते हैं। और ये जो मार्क होता है गोज अवे फॉर फ्यू मंथ, कई महीनों तक वो मार्क उनके पास रहता है, कुछ महीनों के बाद वो जो है वो सांप का मार्क हट जाता है, और उसके बाद वो वापस से उसके अंदर उसको पकड़ के जहर निकाल सकते हैं। लेकिन त्वरित उसी सांप को बार बार पकड़ेंगे तो उसमें जहर नहीं होगा वैसे भी, है ना, तो इसलिए वो मार्क लगा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। Rajendran's confidence in handling snakes and his deep understanding of these creatures are derived from the childhood he spent in the forest. तो इसका जो कॉन्फिडेंस है राजेंद्रन का, इतना जो आत्मविश्वास है जो सांपों को संभालने का, हैंडल करने का, और उनको इतनी जो जानकारी है डीप इसके बारे में, सांप के बारे में, ये सब की सब जो चीज़ें हैं ये उसको बचपन से ही उसको मिली है, प्राप्त हुई है, क्योंकि इसने जो है अपना ज़्यादातर जो समय है वो जंगलों में, फॉरेस्ट में बिताया, और स्क्रब लैंड में, स्क्रब लैंड का मतलब वही पत्थरीला जो जगह होती है, पहाड़ होते हैं, उबड़ खाबड़ जो ज़मीन होती है जमीन की, है ना, उसी ज़मीन, पथरीली ज़मीन में ही उसने पूरा अपना बचपना बिताया है, ठीक है, उस जगह का, उस ज़मीन में वहीं आसपास ये घूमा है, पला बड़ा है, तो इसलिए जो है सांपों से तो शुरू से इनका पाला पड़ा है। देखो ये बिफोर ही टर्न 10, मतलब 10 वर्ष की कम आयु में ही, है ना, 10 वर्ष की आयु से पहले ही जो है इसने कई 100 सांप देख चुका है राजेंद्रन। हंड्रेड्स ऑफ स्नेक बीइंग कैप्चर्ड, कई जो है उसने देखा है कि कई सारे उसके सामने जो है सांपों को पकड़ा गया, है ना, उसके पिताजी या उसके फैमिली वाले यही काम करते हैं। तो इरूलास जो है यूजुअली वर्क इन साइलेंस, इरूला का जो काम करने का तरीका है, इरूला जनजाति के जो लोग हैं उनको सांप पकड़ते हैं, उनको जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही शांति से रहते हैं, मतलब आवाज़ ज़्यादा नहीं करते, हमेशा जो काम करते हैं वो भी एकदम साइलेंस में।
जब वो सांप पकड़ने जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि कम से कम आवाज़ हो, है ना, आवाज़ साउंड बिल्कुल नहीं करते हैं। इवन व्हेन दे गो इनटू द फॉरेस्ट, जब वो फॉरेस्ट में जाते हैं दूसरों के साथ भी जाएंगे, ऐसे नॉर्मली सांप पकड़ने नहीं, नॉर्मल काम के लिए भी जाएंगे तो बहुत ही कम वो वहाँ पर आवाज़ करते हैं। दे इंस्टिंक्टिवली, है ना, एकदम त्वरित, तुरंत जो है इनको पता चल जाता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ फेंट साइन, मतलब अगर हल्का सा भी कोई सा साइन सिग्नल कुछ हो रहा है तो उनको वहाँ पे पता चल जाता है। उनको मतलब उनकी मेमोरी, उनका सेंस बहुत शार्प होता है, उनको हल्का सा भी कुछ ऐसा साइन, उनको ये भी पता चल जाता है कि सांप कहाँ से गुजरा होगा, सांप का रास्ता कौन सा होगा, अब सांप किस टाइम पे कहाँ पर आने वाला है, उनको ये भी पता होता है। क्योंकि छोटे छोटे भी साइंस अगर उनको वो पता कर लेते हैं कि हाँ ये निशानी पता कर लेते हैं ऑन द ग्राउंड टू आइदर फॉलो। कई बार ये होता है कि वो छोटे साइन से उनको पता चल जाता है कि हाँ आगे हमको सांप को पकड़ने जाना चाहिए या फिर किस रास्ते पर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए उधर जाना चाहिए, है ना। तो ये सब वो डिसाइड कर लेते हैं। टू आइदर द टू फॉलो द क्लसेस, क्लसेस का मतलब होता है कुछ छोटी मोटी जो खाई जैसी रहती है ना, जहाँ से निकलने की, दर्रा जिसको बोलते हैं, है ना, कि पहाड़ों के बीच में से जो निकलने का रास्ता होता है, तो वो यही वो साइन से डिसाइड कर लेते हैं कि हमको उस दर्रे में जाना चाहिए या फिर हमको नहीं जाना चाहिए, कहीं और सांप हमको मिलेंगे। तो उनको बिल्कुल हर चीज़ का पता चल जाता है सांप पकड़ते वक्त। हावेवर, फिर क्या है आगे की बात, दे ऑफन फाइंड इट हार्ड टू आर्टिकुलेट, पर इनका कई बार क्या होता है, इनको एक चीज़ ये दिक्कत आती है किसमें, टू आर्टिकुलेट द डिटेल्स अगर ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग, मतलब अगर कोई एक्सपर्ट वगैरह उनसे पूछे तो उसको फिर वो लोगों को समझाने में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका जो नॉलेज है वो थियोरेटिकल नॉलेज तो है नहीं, उनका पूरा नॉलेज जो है प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो कोई अगर उससे ऑफिशियली थ्योरी के तरीके से कोई पूछेगा स्टेप बाय स्टेप, तो वो थोड़ा सा उनको उसको समझाने में प्रॉब्लम होती है ना। तो ऐसे लोग जो रेप्टाइल्स की स्टडी करते हैं उनको भी एकदम डीप में समझाना, डिटेल में समझाने में उनको प्रॉब्लम होती है, बट प्रैक्टिकली उनको सब कुछ पता होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो दोस्तों हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया, है ना, किस तरीके से इरूला जनजाति के लोग सांप पकड़ते हैं और उस सांप से जहर निकालते हैं और उस जहर से जो है एंटी वेनम बनता है। बाद में उसी जहर के असर को कम करने के लिए वही दिया जाता है पेशेंट्स को जिसको भी सांप ने काटा है, स्नेक बाइट। तो एक तरह से हमारे भारत के हेल्थ केयर में जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। तो यही इसमें बताया गया है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं आप। तो उम्मीद है कि जैसे मैंने समझाया उस हिसाब से आप लोगों को अब आराम से आप जो है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द बेस्ट वे टू सेव योरसेल्फ व्हेन अ स्नेक इज नियर यू। चलिए बताइए कि भाई आपके आसपास अगर सांप है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि वो आपको नहीं काटे, है ना। सबसे बढ़िया तरीका है वहाँ पर एकदम शांत होकर चुपचाप खड़े रहो बिना हिले डुले। ठीक है, हिलना नहीं है वहाँ पर, तो आप बच जाओगे। तो दौड़ना नहीं है, एकदम स्नेक को मारना नहीं है, उसको किल नहीं करना है। सबसे बढ़िया तरीका जो है आप वहाँ पे चुपचाप खड़े रहो, सांप जो है वो दूसरा ऑब्जेक्ट समझ के चुपचाप चले जाएगा। आगे, आफ्टर द वेनम हैज बीन फुली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्नेक व्हाट हैपेंस टू द स्नेक। देखो अगर एक बार इन्होंने सांप पकड़ा और उसमें से सारा जहर निकाला, ठीक है, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, 21 दिन तक रखते हैं ना। 21 दिन तक रखने के बाद क्या करते हैं, ये जंगल में जाके उस सांप को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इट इज लेफ्ट इन अ सैंड पिट, वहीं छोड़ देते हैं, नहीं उसको मार देते हैं, नहीं, है ना, क्ले के पॉट में ही रखते हैं, नहीं, क्या करते हैं उसको, ये काम करने के बाद, जहर निकालने के बाद उसको जो है जंगल में रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, चलिए। हाउ डिड राजेंद्रन लर्न स्नेक कैचिंग, कैसे उसने सीखा। भाई उसने तो बचपन से ही सीख लिया, है ना, जंगल में वो रहा हमेशा, अपने दूसरे लोगों के जो मेंबर्स हैं उनको देख देख के ही लर्न, देखो इट इंस्टिंक्टिवली फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही सीखा कि जो समय उसने वाइल्ड में जंगल में गुजारा उसके दौरान वो सीखा, है ना। विलेज के गांव में तो ये चीज़ें नहीं सिखाई गई, और ये चीज़ें जो है एरिला कोऑपरेटिव सोसाइटी तो 78 में बनी, अब उसका बचपन में तो वो ये नहीं बनी होगी। ही लर्न इट एट दी एंटी वेनम फैक्ट्री में, नहीं वहाँ पर भी ये सब नहीं बताया गया है पैसेज में, सीधा सीधा ये ए वाला हमारा आंसर है। फिर इसका मुझे जो है थीम बताओ, इस पैसेज का जो है मेन थीम क्या है ना, कि क्या इसमें बताया जा रहा है। इसमें एक इंफॉर्मेशन देखो, क्या, टू इन्फॉर्म अबाउट द इरूला ट्राइब एंड देयर स्पेशलाइजेशन इन स्नेक कैचिंग, ये हो सकता है ना, कि
एक तो हमको इसमें जो है जानकारी दी जा रही है किसके बारे में, इरूला ट्राइब के बारे में, और उसके साथ साथ जो है उनकी जो क्या काबिलियत है, क्या खासियत है स्नेक कैचिंग में, उसके बारे में बताया, उसका पूरा विवरण किया गया है। तो बिल्कुल ये सही है हमारा, है ना, फर्स्ट वाला ही हमारा राइट है। बाकी देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्नेक कैचिंग, कि स्नेक कैचिंग के क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, स्नेक कैचिंग के क्या क्या फायदे होते हैं, वो बात कर रहे हैं क्या यहाँ पर, नहीं, है ना, ये इनकम्प्लीट सेंस में आ रहा है। टू टॉक अबाउट इरूला स्नेक कैचर, इरूला स्नेक कैचर के बारे में बात करने का वो बोल रहे हैं, नहीं, ये पूरी इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, यहाँ तो एक ही लाइन में किया है उसमें, उसके अलावा एकदम डिटेल में तो नहीं बताया है कि ये सोसाइटी क्या है, कैसे है ना। टू टेल अबाउट राजेंद्रन, राजेंद्रन की बायोग्राफी इसमें बताई जा रही है क्या, उसके बारे में भी नहीं। यहाँ पर अगर जो ओवरऑल जो मीनिंग है ना, कहीं थोड़ा थोड़ा तो हिंट सभी में है, बट ओवरऑल जो मीनिंग आ रहा है ना हमारे पैसेज का, वो ये आ रहा है कि सबसे पहले तो इरूला ट्राइब के बारे में इंफॉर्मेशन देना, और ये भी बताना कि ये जो स्नेक कैचिंग में वो किस तरीके से स्पेशलाइज होते हैं, ठीक है। तो ए वाला हमारा मोर परफेक्ट है, मोस्ट परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कि ये पैसेज के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इसका मतलब 3 स्टेटमेंट जो है वो राइट होंगे, 3 स्टेटमेंट राइट होंगे, एक आपको बताना है कि कौन सा वो राइट नहीं है। देखो यहाँ क्या लिखा है, नियरली 50,000 पीपल डाई ऑफ स्नेक बाइट इन इंडिया, बिल्कुल दिया हुआ है ये फिगर कि भारत में जो है स्नेक बाइट के कारण 50,000 लोग जो है हर वर्ष मरते हैं। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका राइट है। हमको रॉन्ग वाला स्टेटमेंट चाहिए। इरूला स्किल्स form an important part of the healthcare system in इंडिया। देखो यहाँ उसमें दिया हुआ है कि इरूला की जो स्किल है वो एक इनविजिबल पार्ट प्ले करता है, इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं करता है। क्या करता है, एक हिडन पार्ट और इनविजिबल पार्ट वो प्ले करता है। देखो क्या लिखा है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है ये कि स्टेट पैलिनेशियन बट मोस्ट रिमेंबर इंटरेस्टेड इन सर्वाइवल, नहीं यहाँ पर है नॉलेज ऑफ स्नेक बट नियरली, ये देखो स्किल्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट, देखो इम्पॉर्टेंट तो फॉर्म करता है ना, इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन इनविजिबल पार्ट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है लेकिन उसके साथ साथ जो है कैसा पार्ट है, इनविजिबल पार्ट है। तो ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है ना। ये अच्छा, एक मिनट, सही तो है, ये राइट है स्टेटमेंट। इरूला जो है वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट, भाई इंपॉर्टेंट पार्ट भी है और इनविजिबल भी है, मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा राइट है। हमको रॉन्ग चाहिए, है ना, हमको रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए, ये भी हमारा राइट है, ठीक है। आगे देखते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी वेनम इज नॉट द ओनली ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो एंटी वेनम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ही सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है, जबकि इसमें क्लियरली इसमें दिया हुआ है कि केवल एक ही इलाज है, ठीक है ना, केवल एक ही इलाज है। देखो नियरली इतने लोग मरते हैं, और देखो एंड ये देखो ओनली रिलायबल ट्रीटमेंट, जो सबसे भरोसेमंद है ना, सबसे भरोसेमंद जो इलाज है वो है प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी वेनम, ये ही सबसे भरोसेमंद इलाज है। इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा रॉन्ग है, ये जो स्टेटमेंट है हमारा रॉन्ग है, और हमको जो है रॉन्ग वाला स्टेटमेंट ही चाहिए था। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी वेनम जो है इज़ नॉट ओनली ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं है, ये वाला रॉन्ग है, ये ही ओनली सबसे ज़्यादा मोस्ट रिलायबल ट्रीटमेंट होता है। मतलब सी वाला हमारा आंसर रॉन्ग वाला सेंटेंस है, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है। डी वाला आप देखो, मोस्ट ऑफ द एंटी वेनम इन इंडिया इज मेड फ्रॉम वेनम एक्सट्रैक्टेड बाय इरूलास, बिल्कुल सही है। ज़्यादातर जो एंटी वेनम भारत में बनता है ना, वो इसी वेनम से बनता है, जो कि इरूलास लोग इकट्ठा करके लाते हैं, वो 6 फैक्ट्रियों को देते हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा सी वाला है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो हमारा पैसेज हो गया दोस्तों, पैसेज के 5 क्वेश्चंस भी हमने किए, और अब हम आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है ग्रामर का, इसमें ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। चलिए, तो क्या है, द ब्रिज रिपेयर्ड यस्टरडे सो द ट्रैफिक वाज डिलेड। क्या यहाँ पर बोला जा रहा है कि द ब्रिज रिपेयर्ड यस्टरडे, ब्रिज जो है वो क्या हुआ,
कल रिपेयर किया गया और इसलिए जो है ट्रैफिक वाज डिलेड, और इसलिए क्या हुआ कि ट्रैफिक जो है वो डिलेड हो गया। तो ये ब्रिज रिपेयर, ऐसा लग रहा है कि ब्रिज ने यस्टरडे को रिपेयर किया, ऐसा लग रहा है ना कि ब्रिज ने जो है यस्टरडे को रिपेयर किया। तो यहाँ पर जो है पास्ट परफेक्ट हमारा होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो क्या होगा कि पास्ट परफेक्ट हमारा होगा, और क्योंकि यस्टरडे लिखा है तो सीधी सी बात है पास्ट परफेक्ट, तो क्या होगा हैड होगा, और उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म होने वाला ये स्ट्रक्चर आपका होगा कि ब्रिज हैड रिपेयर्ड, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रिज हैड रिपेयर्ड यस्टरडे, की ब्रिज जो है वो कल रिपेयर किया गया था और इसलिए जो है ट्रैफिक काफ़ी डिले हो गया, ट्रैफिक को काफ़ी क्या कर दिया, लेट कर दिया, मतलब एरर जो है इस वाले पार्ट में है। तो ए वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कमेंस, इसका जो है आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है, इसका सिनोनिम हमको बताना है। तो कमेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, स्टार्ट करना, है ना, स्टार्ट करना या फिर बिगिन करना, उसको शुरू करना, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका एरर हमको बताना है इसमें ग्रामर का। वी ऑफन वेंट फॉर वोटिंग व्हेन वी लिव इन नैनीताल। चलिए, तो वी ऑफन वेंट फॉर वोटिंग व्हेन वी लिव इन नैनीताल। वी ऑफन, हम लोग कई बार जो है कहाँ गए, वोटिंग के लिए गए। कब, जब हम लिव इन, व्हेन वी लिव नहीं होगा दोस्तों, जब हम क्या होता है, जब व्हेन वी आर लिविंग इन, व्हेन वी वर लिविंग इन, इस तरीके से होने वाला है। वी लिव इन नहीं होगा, है ना, व्हेन वी वर, या तो वी वर लिविंग हो सकता था या व्हेन वी लिव्ड इन, ये भी हो सकता था। तो वी ऑफन वेंट फॉर वोटिंग व्हेन वी, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म ज्यादा सीख लग रहा है, व्हेन वी लिव्ड इन, सॉरी व्हेन वी लिव्ड इन नैनीताल, की जब हम नैनीताल में रहते थे, बिल्कुल पास्ट टेंस आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है हमारा, किस पार्ट में हमारा एरर है, इस पार्ट में एरर आपका हो जाएगा, लिव के बदले लिव्ड हो जाएगा, डी वाला सेक्शन आपका बिल्कुल राइट है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव। चलिए इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, इसमें देखना है कौन सा पार्ट, ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है या फिर कोई ज़रूरत नहीं। चलिए देखते हैं। आई सॉ द बस टू क्रैश इन अ लैम्प पोस्ट। तो ये आई सॉ द बस, मैंने बस देखी, टू क्रैश, तो ये टू क्रैश इन द लैम्प पोस्ट, की जो कि क्रैश हो गई कहाँ पर, लैम्प पोस्ट में। आप मुझे बताओ दोस्तों इसमें टू की ज़रूरत है। I saw the अरे क्या हो रहा है, I saw the bus to crash, टू नहीं होगा, ठीक है। I saw the bus crash in the lamp post, सीधा सीधा सेंटेंस है, टू आपका नहीं लगने वाला है, मतलब राइट आंसर ये है, ठीक है। saw the bus crash in the lamp post, सी वाला हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है। His parents are dashed to his plan of becoming a musician। तो उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो माता पिता हैं, वो क्या है, डैश टू हिज प्लान, उसके इस प्लान से, जो वो म्यूजिशियन बनना चाहता है, उसके इस प्लान से वो क्या है, देखो चारों ही जो वर्ड है ये नेगेटिव है, चारों ही वर्ड है नेगेटिव है, वर्ब का जो है सेकंड फॉर्म आने वाला है, तो नेगेटिव सेंस का ही यहाँ पर ब्लैंक लगने वाला है, बट मीनिंग वाइज कौन सा लगेगा वो हमको देखना है। तो हिज पेरेंट्स आर क्या है, डैश टू हिज प्लान, उसका जो प्लान बनाया था ना कि मुझे म्यूजिशियन बनना है, और वो जो प्लान उसने बनाया था ना, उसके पेरेंट जो है उसके खिलाफ है, उसके पेरेंट्स, ठीक है। तो खिलाफ के लिए वर्ड क्या होता है, हिज पेरेंट्स आर अपोज्ड, क्या हो जाएगा दोस्तों, हिज पेरेंट्स आर अपोज्ड टू हिज प्लान, उसके प्लान से। हिज पेरेंट्स आर रेसिस्टेड, क्यों, क्योंकि अपोज के साथ टू आता है ना, रेसिस्टेड जो है इसके साथ टू प्रीपोजिशन नहीं आता है, ठीक है। कॉन्ट्रास्टेड, कॉन्ट्रेरी टू, कॉन्ट्रेरी के साथ आता है, ठीक है। कॉन्ट्रेरी टू पर ये मीनिंग वाइज नहीं जम रहा है, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्टेड विद आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अपोज जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है, कि अपोज टू हिज प्लान ऑफ बिकमिंग अ म्यूजिशियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वापस आपका जो है रीअरेंजमेंट है, इसमें ईडीएम दिया हुआ है दोस्तों। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेड वाला जो आपका ईडीएम है, और इसका हमको बताना है कि राइट क्या मीनिंग हो जाएगा।
by working from home she is able to work as well as look after the house. This way she has the best of both the world. तो दोस्तों बिल्कुल best of both the worlds जो है इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, और नहीं हो तो आप सेंटेंस से कोशिश करें कि क्या इसमें मीनिंग आ सकता है। कि देखो सबसे पहले तो बाय वर्किंग फ्रॉम होम, घर से काम करते हुए जो है वो एबल टू वर्क। देखो अच्छी बात क्या है कि वो काम कर सकती है और साथ ही साथ अपने घर का ध्यान भी रख सकती है, मतलब दो दो फायदे। ठीक है, तो बोलते ना चढ़ भी आपकी पढ़ भी आपकी, इस तरीके से कोई एक मुहावरा है ना कि दोनों तरफ से फायदे, दोनों तरफ से फायदे अपने ही हो रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड, इसका मतलब इधर भी फायदा उधर भी फायदा, डबल बेनिफिट। ठीक है, तो किस तरीके का मीनिंग क्या हो रहा है देखो, डूइंग टू जॉब बेस्ट फॉर हर एबिलिटी, उसकी काबिलियत के लिए अच्छा है। नहीं, इंजॉइंग टू अपॉर्चुनिटीज टुगेदर, ये आपका ठीक होगा कि दो दो जो अपॉर्चुनिटीज है उसको एक साथ उसके मजे लेना या उसको इंजॉय करना या उसका फायदा उठाना, तो ये आपका बिल्कुल सही है। एक ही समय पर दो दो अपॉर्चुनिटी हमको मिलना, डबल फायदा मिलना, वो इसका मीनिंग होता है। डूइंग दो वर्क एट सेम टाइम वो नहीं है ना, उसकी खुशी की बात हो रही है ना कि बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड, दोनों वर्ल्ड के बेस्ट में, मतलब वो उसको इंजॉय कर रही है, उसका फायदा उठा रही है। ठीक है, विजिटिंग, दो अलग अलग जगह पे विजिट करने की तो कोई यहाँ पर बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो है एब्सोल्युटली राइट है कि इंजॉइंग टू अपॉर्चुनिटीज टुगेदर, एक साथ दो अपॉर्चुनिटीज को इंजॉय वो कर रही है। ठीक, चलिए तो ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर का। इसका सिनोनिम बताना है दोस्तों, असर्ट। ठीक है, असर्ट का एक मतलब होता है कि किसी चीज को क्या करना, एक उसको रिक्वेस्ट करना। ठीक है, क्या करना, एक तरह से रिक्वेस्ट करना या फिर एक तरह से एम्फेसाइज करना, उस चीज को जो है बहुत ज्यादा जोर दे के बताना। ठीक है, उसको बोलना बताना इस तरीके से, तो एम्फेसाइज जो है ये बिल्कुल इसका राइट सिनोनिम है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर के हमारे 100 क्वेश्चंस दोस्तों पूरे हुए, और उम्मीद है कि जिस तरीके से डिटेल में हमने समझा, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा। इसी प्रकार जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेनोग्राफर के पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। तो चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ।